اشتیاق مدنی مجھے مدنی مذاکرے کا ماحول بہت پیارا لگا ہے۔ مدنی مذاکرے کے اندر پیر صاحب سنتے سکھاتے ہیں، مدنی مذاکرے کے اندر پیر صاحب روحانی تربیت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کا کہتے ہیں۔ بالخصوص جو آپ نے عقائد اور اعمال کے حوالے سے امت کی اصلاح فرمائی ہے اور جو اس میں نمایاں آپ کی خدمات ہیں، یقیناً یہ ایک تاریخی اور بے مثال خدمات ہیں۔ ہمیں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں فقہی مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، ہمیں امیر اہل سنت سے تنظیم سیکھنے کو ملتی ہے، اور مدنی مذاکرہ جو ہے وہ صرف یہ خاص کمیونٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہر شعبہ زندگی سے ریلیٹڈ ہے۔ مدنی مذاکرہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ظاہری غذا ہوتی ہے ہمارے لیے، تو اسی طرح مدنی مذاکرہ بھی ایک روحانی غذا ہے کہ اگر طلبہ کرام جیسا ہوتا ہے نا، ایک ڈیلی ڈوز ہوتا ہے، ایک ویکلی ڈوز ہوتا ہے، تو امیر علیہ سنت یہ ایک شاندار کارنامہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیں ایک ویکلی ڈوز دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اخلاقی اور شرعی حوالے سے امپروو کریں۔ الحمدللہ پہلے کتابوں میں پڑھا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا تھا کہ وہ جس سے جو بھی ان کو پڑھتا ہے ان کی کتاب کو لگتا ہے کہ امام غزالی اسی کو سمجھا رہے ہیں۔ رات کو الحمدللہ میرے اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، بالکل قریب ہی بیٹھے تھے، ایسا ہی لگ رہا تھا کہ پیر صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں مجھ سے ہی کر رہے ہیں، میری طرف دے کے ہی وہ فرما رہے ہیں۔ اور پہلے جو مدنی کاموں کا جذبہ کم تھا، الحمدللہ آج سے یہ نیت کر کے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ آج جا کر مدنی کاموں کی دمیں مچائیں گے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ہر طالب علم کو ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرہ اور جو بھی مدنی مذاکرے ہوتے ہیں ان میں لازمی شرکت کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اگر مدنی مذاکرے کا جدول طلبہ کرام بنا لیں تو جہاں تعلیمی تو فائدہ ضرور ہوگا لیکن وہ معاشرے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے تمام طلبہ کرام سے یہ عرض اور گزارش ہی ہے کہ لازمی ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ضرور اٹینڈ کریں۔ قبلہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آج بھی مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے، تو اس علم دین کو سیکھنے کے لیے طلبہ کرام کی علم دین کی لگن کے لیے مدنی مذاکرہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی طالب علم امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں پہ عمل کر لے، توجہ کے ساتھ سن لے، تو اس کو بہت زیادہ علم دین حاصل ہوگا، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مدنی مذاکرہ علم کا ایک خزانہ ہے۔ مدنی مذاکرے میں آنے والا شخص ایک روحانیت محسوس کرتا ہے، قلبی سکون بھی ہوتا ہے، ذہنی سکون بھی ہوتا ہے۔ تو مدنی مذاکرے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمیں چیزیں معلوم ہیں، جو علم معلوم ہے وہ آگے ہم بیان کریں، اور جس میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے ہم وہ پوچھ کر آگے بیان کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیر صاحب کو لمبی طویل زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور ان کا فیضان ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ ہمیشہ عطا فرمائے۔ دادا جان، آج کوئی حیران کر دینے والی کہانی سنائیں۔ آج میں تمہیں ایک ایسی سچی اور حیران کن کہانی سناؤں گا جس میں ایک آدمی جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگا تھا۔ سچ میں دادا جان؟ ایک بوٹی مرغے نے کھا لی، کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ ایک بوٹی تو میرے لیے چھوڑ دیتے، فکر نہ کرو دوست، کل اس شخص کا بیل مر جائے گا۔ بھو؟ ہاں سچ؟ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مشاورت ہوئی تھی ہماری نگران شورا کی لائیو، اب ہو گیا جی جی، انشاءاللہ کچھ دیر لائیو اور انشاءاللہ اس کے بعد براہ راست تو لائیو ہے، خصوصی مدنی مذاکرہ، یہ عمومی۔
फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम मुझ पर दुरूद भेजो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल आज डायरेक्ट वो तरकीब दी के सवालात करेंगे, तो अब जिनकी तरकीब वो कौन सा सवाल करना है, क्योंकि है लाइव, तरकीब दी गई है या नहीं। कोई रिकॉर्डेड भी सवाल तो होंगे इस टाइप के जी। हाँ, तो फिर आप उसी से शुरू करें। आए नहीं है मतलब जामियातुल मदीना के जो असातिज़ा कराम और इनके जो आए हुए हैं उनके कुछ वीडियो सवालात भी हमने किए हैं। जी जी जी, और आज टीज़र चला है तो एक हमजा भी चल जाए फिर ऑफियर हो जाए। बेहतर। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है कि हमारे बाज़ तलबाए कराम जो दर्स निज़ामी से फ़ारिग तहसील होते हैं, उनका ना कोई तदरीसी सिलसिला होता है और ना ही वो कोई इमामत करा रहे होते हैं, बल्कि वो अपने किसी दुनियावी कारोबार में लग जाते हैं। तो अर्ज़ यह है कि वो अपनी जो दर्स निज़ामी और ये दीन की तालीम उन्होंने हासिल की, इसको वो कैसे महफूज रख सकते हैं? वाकई ऐसा है कि कुछ ना कुछ तादाद ऐसी होती है कि जो दर्स निज़ामी कर लेते हैं, फिर वो कारोबार में लग जाते, फिर ज़्यादा वो फिर तो भूलना ही है। जो यानी कि इल्म जो है ना खर्च करने से बढ़ता है, दौलत खर्च करने से कम होती है। तो इल्म को खर्च नहीं करेंगे, दूसरों में मुंतकिल नहीं करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे नहीं, तो खुद भी अपने पास से जाता रहेगा। एक चुटकुला है कि वो किसी मुल्क में था, तो एक साहब थे, वो बड़े अच्छे मशहूर आलिम के वो शागिर्द थे, जो साहिब तसानीफ भी हैं, लेकिन अब साहिब मज़ार हैं वो। तो मैंने कभी कहा होगा तो किसी के सामने कि ये माशाअल्लाह आलिम साहब हैं, तो उन्होंने कहा ये आलिम का है, व्यापारी है व्यापारी। वो बेतकल्लुफी में कहा तो वाकई वो व्यापारी, वो तिजारत करते थे, तो उनका इमेज ही ख़त्म हो गया था बतौर आलिम। ऐसे कि बहुत मशहूर आलिम के वो हजरत वो जिन्होंने जन्नती ज़ेवर लिखी है, हजरत आशिकुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मशहूर शख्सियत है, इनके शागिर्द थे ये। क्योंकि ये मौलाना अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात निकली, तो इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, और जो इनको पता होगा, मेरा ख्याल है मशहूर है। वैसे अब पता नहीं ये मुताला आप लोग करते नहीं करते, वो अलग बात है। ये दावत इस्लामी जब बनी तो उस खैर मेरी कोई इनसे कोई तारुफ नहीं था, इन्होंने पहल की, माशाअल्लाह इनका जज्बा था। इन्होंने मुझे पैगाम दिया कि अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें कोई किताब लिख दूँ कि तुम मतलब मस्जिदों में इसको पढ़ पढ़ के तुम्हारे यहाँ दावत इस्लामी में सुनाया जाए। तो अगर हाँ तो बोला, मुझे मुकाशफतुल कुलूब का भी इनको पता था, उस वक्त हम ये मस्जिद में पढ़ते थे कि मुकाशफतुल कुलूब का ओरिजिनल अरबी नुस्खा मुझे भेज दो तो मैं लिख दूंगा। लेकिन बहरहाल लेके बाद में पता नहीं क्या हुआ, मैंने इनको भेजा नहीं भेजा मुझे याद नहीं है। नहीं, पहल इन्होंने की, तो माशाअल्लाह इनको इतना जज्बा था दीन का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इनके वो बात चली कि वो थे मतलब इन इससे बड़े आलिम के शागिर्द थे, लेकिन लग गए कारोबार में, तो वो आलिम न कहलाए व्यापारी कहलाए। अब ये कि आप माशाअल्लाह इतना अरसा दीन पढ़ें, जो आपको दीन पढ़ाते हैं, जो इदारा आपको दीन पढ़ाता है, मसलन दावत इस्लामी पढ़ाती है,
या आपके सरमाया भी तो खर्च करती है ना। यानी एक दरस निज़ामी करके जो फारिग होता है, इसकी क्या एवरेज, क्या अंदाज़ा इस पर अखराजात हमारे लगते होंगे, अंदाज़ा है कुछ? निकाला था, अभी दोबारा मैं चेक करके आपको शायद बताता हूँ। लाखों रुपए खर्चा होता होगा। एक 8 साल अगर एक तालिब इल्म पढ़ते हैं, उन पर टोटल कितना खर्च होता है, इस पर हमने निकाला था यूनिट। तो ये जो कैपिटल लगाता है सारा, उसकी आउटपुट चाहिए, उसको इनकम चाहिए। तो जब मुझे कैपिटल लगाने वाला के इतना अरसा उसके पे मेहनत की, फिर असातिज़ा जो देखते होंगे कि इस पर मेहनत की मैंने, और ये अब नोटें गिन रहा है, तो असातिज़ा पर क्या गुजरती होगी। फिर इदारे वालों पर जो खर्चा करते हैं और खूब चंदा इकट्ठा करते हैं, खालें खींचते हैं वगैरह, उनको भी यूं नहीं होता होगा कि यार यानी जिस बाग का फल गिर जाए तो माली को नहीं कुछ हो, यार मेरा बाग का फल कहाँ गया, गायब हो गया। अब इसमें समझ जाए आपने, जब माशाल्लाह इस फील्ड को अपनाया है, तो फिर इसमें कोई खराबी तो है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आगे बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, तो ये आपके शागिर्द दर शागिर्द, तो पहला जो उस्ताद है, ये सबके लिए वो सारे सवाब जारिया बन रहे हैं, सदका जारिया बन रहे हैं। जिनको इसने सिखाया अब ये आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, अमल कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, तो सवाब की इंतहा नहीं है इल्म पढ़ाने में। और जो दरस निज़ामी कर लेते हैं, मदनी बन जाते हैं माशाअल्लाह, या कहीं से भी दरस निज़ामी करते हैं आशिकान रसूल के इदारे से, यार वो भूखे नहीं मर जाते। आखिर उलमा भी तो पेट भर के खाते ही ना यार, इनके भी बाल बच्चे होते हैं, इनका भी ख़ानदान होता है, मुआशरे में ये भी रहते हैं, आते हैं जाते हैं, इनकी औलाद की शादियाँ होती हैं। तो मुआशरे से कोई समझता है कि मौलाना लोग कट गए, तो ऐसा नहीं है। मुआशरे से कटे नहीं होते, बल्कि मुआशरा इनके पीछे चल रहा होता है कि मौलाना थोड़ा बा अखलाक बा किरदार और वो समझ में आता है ना, तो लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं और इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। ऐसे कई उलमा आपको मिलेंगे जिनके पीछे गैदरिंग होती है। अच्छा, जितने भी मशाइख होते हैं, ये क्या सारे के सारे उलमा, अगर वो आलिम नहीं है तो फिर मशाइख में नहीं है, पीर नहीं है। पीर की शराइत में से ये शर्त है कि वो आलिम हो। तो यूं मतलब ये कि इनके पीछे लोग हैं या नहीं है। अच्छा, दीन किसने बचाया? दुकानदारों ने बचाया, दफ्तरों में काम करने वालों ने बचाया, रेडियां चलाने वालों ने बचाया, नौकरियां करने वालों ने बचाया, तो दुनियावी काम करते हैं। दीन तो उलमा बचा रहे हैं। दीन को फैलाया किसने? उलमा फैला रहे हैं। जो भी उलमा या उलमा से जो वाबस्ता है, दीन जानते हैं, दीन समझते हैं, नेकी की दावत देते हैं, तो वही तो दीन फैला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं दीन को। तो अगर हम सब दीन पढ़कर इस काबिल हुए कि अब कुछ दीन को आगे बढ़ाने में मजीद हम मदद कर सकते हैं और एकदम इधर उधर निकल जाए, तो मुनासिब यही है कि हम इसी फील्ड में रहें। अब इसमें भी भूखा नहीं मरता आदमी। जैसे अब इमाम बन गया, तो इमाम को भी डायरेक्ट खिदमत तो होती है, उसकी पेट मांगता है सबका, तो कोई हरज भी नहीं है। अच्छा, फिर वो निकाह रजिस्ट्रार बन जाते हैं, तो यूँ इनकम शुरू हो जाती है। ये मतलब तदरीस अगर करते हैं, तदरीस में भी इनको इनकम हो जाती है। ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन में इनकम हो जाती है। ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इसमें इनकम हो जाती है। घर सबका चल जाता है, कोई भूखा नहीं मरता, ना आलिम मरता है ना अनपढ़ मरता है। रिस्क तो अल्लाह के जिम्मे करम पर है ना, तो सबको अता फरमाता ही है। कीड़ी को कन और हाथी को मन वो अता करता है ना, जिसकी जितनी गिज़ा उसको अता करता है। तो तवक्कुल, अल्लाह पाक पर तवक्कुल हो तो कोई मुश्किल नहीं है। यानी जो तवक्कुल नहीं रखते बिल फर्ज, भूखे वो भी नहीं मर रहे। जो अल्लाह और रसूल को माज़ अल्लाह बुरा भला कहते हैं, भूखे वो भी नहीं मर रहे। जिसको अल्लाह पाक ने जिंदा रखना मुकद्दर फरमाया कि इतनी इसकी उम्र है, वो उसको रिस्क तो दे ही रहा है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो।
चाहे चूंटी हो, चाहे मतलब यानी कि बिल में कोई रहने वाला जानवर हो, सबको जितने भी ज़मीन पर चल रहे हैं तो वो सबको अल्लाह पाक रिस्क अता फरमाता है। हिकम से है भरा मदनी मुज़ाकरा, इल्म हिकम से है भरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी 12वें पारे की इब्तिदा में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल बात यही है जो आपने अभी इरशाद फरमाया ना हुजूर के मसला जो घबराहट होती है। असल में कल भी रात को याद होगा हमने पूरा ब्रेकअप निकाला था, हुजूर इसका पूरा ब्रेकअप दिया था कि अगर कोई सही पढ़ने वाला, जैसे तदरीस उसको आती है, जो भी हमारे मदनी चैनल पे भी जो हमें देखे हैं सुन रहे हैं, तो अगर काबिलियत है, तदरीस आती है, इमामत आती है और अब जो फ़न है वो उसकी महारत है, तो फिर उसके लिए मौक़े बहुत, चाहे दीन हो या दुनिया हो। जिसको आता नहीं है उसके लिए फिर परेशानी है, और जिसको आता हो तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि जो करना है उसकी महारत हो, और जो शख्स कर रहा है उसकी महारत हो, फिर वो हो मेहनती। ये 2 चीज़ें होती हैं। और तीसरी उसकी ईमानदारी होती है कि उसको दियानतदारी ईमानदारी से करे, मेहनत के साथ करे, क्योंकि मेहनत तो जो गलत करते वो भी मेहनत कर रहे होते हैं। तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको आप इसकी रिसर्च आप देख लें। नंबर 1, जो काम करना है वो करने सही आता हो, बिल्कुल महारत हो उसको, वो करने आता है। नंबर 2, उसके करने में उसकी कोशिश पूरी है, मेहनती है। नंबर 2, नंबर 3, मुकम्मल अमानतदारी ईमानदारी और दियानतदारी के साथ करे। ऐसा शख्स माशरे में कहीं भी हो, ये मतलब ये वो फारिग नहीं रहता, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसकी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाती हैं। अब ये तीनों महारतें ना हों, ये तीनों में से कोई एक भी कमी हो तो भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो अगर इस तरफ जाएं तो अल्लाह पाक की रहमत से करम ही होगा। वो तो कल भी ये बात की थी कि क्या कभी कोई डॉक्टरी करने के बाद ये कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, जब पूरी ज़िंदगी इंजीनियरिंग पढ़ी उसने, और फिर आकर कहेगा यार क्या ख्याल है मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो कौन कहेगा कि यार आप फैसला सही कर रहे हैं। तो जिस मकसद के तहत पढ़ा है उसी मकसद को लेकर बढ़ें, और दीन की खिदमत के और दावत इस्लामी जैसी तंजीम हो तो फिर तो और खिदमत करना आसान हो जाता है। हदीस पाक में जो इल्म दीन हासिल करेगा अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात को आसान फरमा देगा और उसे वहाँ से रिस्क अता फरमाएगा जहाँ इसका गुमान भी ना होगा। ये हदीस पाक के अल्फाज। अच्छा, आगे वो इस शरह में यह है कि तजर्बा भी इस बात का शाहिद कि कामिल इखलास और मेहनत के साथ इल्म दीन हासिल करने वाले कई दुनियादार लोगों से ज़्यादा बेहतरीन तौर पर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। कई बड़े बड़े हुक्मरान और अफसरान उलमा किराम के हाथ चूमते, इनकी खिदमत करते और इनकी जूतियाँ उठाने को सआदत समझते नजर आते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीधी सोशल मीडिया पर आपके ऑफिशियल फेसबुक पेज, इसी तरह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी पर भी बराह रास्त मदनी मुज़ाकरा देखा जा रहा है। एक इस्लामी बहन का सवाल अलग से ये मौसूल हुआ है। ये अर्ज़ कर रही हैं कि उस्ताद अपनी पढ़ाई, मुताला और तदरीस के साथ दीनी काम को किस तरह लेकर चलें। अगर ज़्यादा फोकस मुताला और तदरीस पर रखें तो दीनी कामों में हर्ज वाक़ होता है, और अगर दीनी काम पर ज़्यादा फोकस करें तो मुताला और तदरीस में हर्ज वाक़ होता है। या सईदी इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए, क्या वक्ती तौर पर दीनी काम को मौकूफ़ करके मुताला और तदरीस को अहमियत दी जाए? दोनों काम साथ साथ अगर इत्तेदाल के साथ करे ना, करने वाला हो तो कर सकता है। बाल तो ऐसे भी माशाअल्लाह काम भी करते होते हैं और नुमाया पोजीशन भी ले रहे होते हैं, तलबा किराम ऐसे भी होते हैं।
तो दीनी काम की बरकत से इंशाअल्लाह वो आपके इस इल्म वाले काम में भी मदद मिलेगी। लेकिन ये कि दोनों में बैलेंस रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप बैलेंस रखें, आप अपनी सलाहियत के मुताबिक इसको तकसीम करें। आखिर वो खाने के लिए वक्त निकालते हैं, आप दोस्तों से मिलने जुलने के लिए वक्त निकालते हैं, अब तो सोशल मीडिया के लिए भी वक्त निकालते हैं। अब माइनस क्या किया जाए, तदरीस करता हूं मैं, और दीनी काम को माइनस कर दो, दस्तरखान हटा दो। तो यही तो दस्तरखान है आपका दावत इस्लामी, उसको हटा रहे हो तो फिर कैसे होगा? तो इसमें भी आपको हिस्सा लेते रहे, वरना ये कि बाज का जहन होता है कि पहले दरस निज़ामी कर लो फिर दीनी काम करेंगे। तो हमने पहले 12 माह की जब कोशिश की ना शुरू, तो दरस निज़ामी वालों के पूरा करके 12 माह, तो जो तजर्बा हुआ ना मुंह की खाई, यूँ समझ लो। सिर्फ तीन 12 माह के लिए गए, उनमें भी अब शायद एक नजर आते हैं, तो वो भी उसमें मदनी चैनल में। अब वो कोई एक्टिव है दीनी कामों में या नहीं, इसकी मुझे कोई मालूमात नहीं है, नजर आते हैं। तो कहाँ गए लावेतरिया ने? तो फिर हमने तलबा किराम पर कोशिशें शुरू की, तो माशाअल्लाह लाट के लाट, यानी हजारों तलबा शायद होंगे कि जो 12 माह का सफर कर चुके होंगे। आप में कई होंगे जो अहदे तालिब इल्मी में 12 माह किया होगा जी, कई होंगे। हाँ, तो ये हमारा तजर्बा कामयाब हुआ। अगर इनको किसी ने जहन बनाया होता कि पहले दरस निज़ामी कर लो तो फिर करना दीनी काम, तो फिर जैसे दरस निज़ामी का वक्त पूरा हो ना हो, माँ ने कहना है ढूंढी है, लगाम डालनी है तेरे को, अब बहुत हो गया, तुम्हारे वालिद साहब की तबीयत सही नहीं रहती, जल्दी तुम फारिग हो जाओ और कमा के लाओ। तो ये फिर इन उलझनों में पढ़कर बंदा जो है वो फिर आगे दीन का काम करे। जो आदत नहीं है ना उसकी, तो एकदम से वो नहीं कर सकेगा। दावत इस्लामी एकदम से वो कूद के नहीं आ गई। मैं अगर बोलूँ ना कूद के नहीं आ गई कि भाई इसने बड़ा वो ये वो नहीं। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यानी कि ज़माने से दावत इस्लामी के पहले से अपने तौर पर हमारी एक अंजुमन बनाते थे, हम कुछ ना कुछ करते थे। तो ये मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। मेरे पास उस दौर में दावत इस्लामी से पहले दाढ़ी वाले नौजवानों की एक खेप थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से। तो हम इज्तिमा भी करते थे, सब कुछ करते थे, दीन के काम जो सब कुछ क्या करे, अब भी नहीं करते ना, कुछ ना कुछ करते थे। तो यूँ फिर दावत इस्लामी मिली, तो फिर ये कि हमारे दीन के काम को एक अच्छा खासा नहीं समझोगे उरूज मिल गया। लेकिन तजर्बात पहले से थे, काफ़ी हद तक तंजीमी जहन पहले से था, एकदम बन नहीं गया, कुछ ना कुछ था पहले से। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता और तजर्बात सिखाते गए, काम बड़ा हो गया ना। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर आप अहदे तालिब इल्मी में काम करना जारी रखेंगे, चाहे वो मेरे मदनी बेटे हों, मदनी बेटियाँ, बाजियाँ जो पढ़ाती हैं या तालिबात, अगर वो सब अपने दीनी कामों में मसरूफ़ रहेंगे, तालिब इल्म दीन भी मसरूफ़ रहेंगे, तो ये इसमें एक फ़ायदा ये भी होगा आपको, जामियातुल मदीना से तो ज़ाहिर मोहब्बत ज़ाहिर ये होगी। तो ये बढ़ेंगे इसी सूरत में कि आप दीनी काम बढ़ाएंगे। बाकी कोई ऐसी अंजुमन, कोई बज़्म आप बताओ कि जो इतने सारे मदारिस जिसके पास हो, इसके बाद इतने जामियात है ना, नहीं, किसी के पास भी नहीं है। तो ये क्या दावत इस्लामी के पास है। दावत इस्लामी के पास कैसे है? दावत इस्लामी काम किया गया, इस्लामी भाई आते रहे, काम करता रहा, बढ़ता रहा, अब बन गया ये माहौल। अब कोई कहेगा नहीं यार खाली पढ़ो बस, खाली पढ़ाओ बस। तो इस तरह तो आपके जामियातुल मदीना खुदा ना खास्ता सबका जहन बन गया तो रिड्यूस होते चले जाएंगे। इनका खर्चा कैसे पूरा होगा, इनको असातिज़ा कैसे मिलेंगे पढ़ाने वाले, और यानी कैसे निज़ाम चलेगा ही नहीं। तो इसलिए वो आपका इसमें, अगर आपको जामियातुल मदीना पसंद है तो इसका मफाद भी इसमें, आप दीनी काम बढ़ाएं, आपको तलबा किराम मिलेंगे, अच्छे अच्छे जहन मिलेंगे, अच्छे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको माली तौर पर आपके जामियात को मजबूत करेंगे, और इस तरह इंशाअल्लाह मक्का मदीना होता रहेगा।
آپ نے ایک آواز لگائی نا ماہ رمضان میں کہ 21,000 داخلے چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے رزلٹ ہمارے سامنے کہ 21,000 داخلے ہو گئے، وہ بھی پلس، آپ نے 21,000 پلس کا کہا تھا بھائی 21,000 مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نسبت سے. اور یہ جو آپ نے ایک طالب علم کے بارے میں جو کہا تھا کہ ایک طالب علم کا خرچہ کتنا 8 سال کا پورا درس نظامی کرتے تو راؤنڈ فگر 9 لاکھ بنتا ہے. 9 لاکھ راؤنڈ فگر 8 سال میں. اب جس کے پاس 9 لاکھ اس پہ غیر مقیم طلباء کرام کو اگر ہم لیتے ہیں جی لیکن ظاہر اس میں پھر اخراجات میں ہم تنخواہیں اور ساری چیزیں پھر لے لیتے ہیں، ہم ایوریج ہے. غیر مقیم بھی ہے، اس پہ بھی خرچہ لگتا ہے انڈر اسٹوڈنٹ، مطلب تو یوں مطلب جس پر 9 لاکھ جیسے لگے یا جو بھی لگا تو وہ آؤٹ پٹ تو چاہیے نا اس کی کہ یہ ہم کو کیا اب کما کے دے گا. ماں باپ بچے کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں ڈگریاں، تو آخر اسی لیے نا کہ یہ کما کے لائے گا ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. تو یہ کہ آپ کو بھی اسی ڈگر پہ سوچنا چاہیے. خالی پیسے مال کھانا پینا اس کے لیے ہم تھوڑی زندہ ہیں. کھانے پینے کی اگر زندگی کا مقصد ہے تو وہ تو جانور زیادہ کامیاب ہے اس مشن میں. دھندا یہی ہے اس کے کھانا پینا، اور کام ہی نہیں ہے اس کا کوئی. ہمارے تو بہت سارے کام ہیں. تو اللہ کرے گا تو انشاءاللہ بہتری رہے گی. تو خوب کام کریں دین کا. اس میں آپ کی آخرت کی بھی بھلائی، دنیا کی بھی بھلائی، آپ کے جامعات المدینہ کی تعداد میں بھی اضافے، اور مکہ مدینہ 21,000 داخلے، 21,000 ٹھیک ہے نا، پلس 21,000 پلس داخلے یہ بولتے ہیں رمضان کے بعد رمضان الکریم میں جو اعلان ہوا. تو اب کیا یہ کہاں سے آ گئے 21,000 آئے کہاں سے؟ دعوت اسلامی کہ اس میں گیدرنگ ہے. آپ میں جو کام کرتے ہیں ان کی برکتیں، جو کام نہیں کرتے ان کے لیے یہ متوجہ کرنے والی بات ہے کہ اگر آئندہ سال اگر یہ اعلان ہوا کہ بھئی 40,000 داخلے بالفرض، تو ہم لوگ مل کے کریں گے تو ہوں گے نا، ورنہ جس نے اعلان کیا اس کی کچی ہو جائے گی. اس کی پکی بھی کرانی ہے اور آخرت کی پکی بھی کرانی ہے اپنی. ایک بات کر رہا ہوں تو اس لیے مطلب آپ سب ایکٹیو رہیں گے تو یہ آپ کے جامعات المدینہ اور ترقی کریں گے اور ترقی کریں گے. دنیا بھر میں کئی ممالک میں جامعات المدینہ الحمدللہ آپ کے کھل گئے. یہ کیسے کھلے؟ دینی کام کی برکت سے کھلے، ورنہ کون کس کو پوچھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ ادھر اس پر اگر آپ ایک خوبصورت سا واقعہ سنا دیتا ہوں جو امیر اعظم فرما رہے ہیں. فیصل آباد میں میری حاضری تھی، فیصل آباد مدنی مرکز میں. تو فیصل آباد کے کچھ علماء اور بزرگ اور یہ ائمہ کرام وغیرہ جمع ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہی سلسلہ تھا. تو ان میں نے جامعۃ المدینہ کے تعلق سے بیان کیا کیونکہ ان کی فیلڈ تھی درس نظامی اور دارالعلوم. تو وہاں میں نے 12 ماہ کا تذکرہ کیا کہ ہمارے ماشاءاللہ طلباء کرام پڑھائی کرتے کرتے 12 ماہ سفر کر جاتے ہیں. تو اس میں ایک حضرت تھے، انہوں نے کہا کہ بعد میں جب اینڈ ہوا سوال جواب کے سلسلے میں، ایک بات آپ سے اتفاق نہیں ہے کہ آپ یہ پڑھائی کے دوران 12 ماہ بھیج دیتے تو اس سے پڑھائی نہیں ڈسٹرب ہوتی ہوگی طلباء کرام کی. اور اس سے پہلے کہ میں جواب عرض کرتا تو میرے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی تشریف فرماتے ہیں فیصل آباد کے. تو انہوں نے کہا مجھے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں عرض کروں. میں نے کہا جہاں آپ کہہ دیں. تو پھر انہوں نے پہلے اپنا تعارف بیان کیا حضرت سے کہ حضور میرا یہ نام ہے، میں نے جامعہ میں پڑھا ہے اور وغیرہ وغیرہ. میں ابھی دارالفتہ اہل سنت میں میری یہ ذمہ داری ہے، اور زمانہ طالب علمی میں ہی میں نے 12 ماہ کیے تھے. اور 12 ماہ کرنے کے بعد میں جب واپس آیا تو میری پڑھائی میں اتنا اچھا فرق آیا کہ الحمدللہ آج میں دارالفتہ اہل سنت میں بیٹھا اپنی خدمت انجام دے رہا ہوتا ہوں. تو اس سے پڑھائی وہی امیر سے فرمائے اعتدال، اگر ہم بیلنس کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے رابطے، عوام سے رابطے، ان کے مسائل، ان کے حالات، ان کے واقعات سب قافلوں میں پتہ چلتا ہے. ہم اجتماع میں آتے تو پتہ چلتا ہے، ہم اسلام آباد بسوں میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، ہم ان کے ساتھ درس بیان میں بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، عوام میں رہتے ہیں تو ہمیں عوام کے حالات پتہ چلتے ہیں. اس سے الحمدللہ ہمارے علم میں اور دیگر چیزوں میں اور برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں. ماشاء صلو علی الحبیب. فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری، اس پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. اس پر یہ سوال موصول ہوا ہے، حضور کبھی طالب علم کتاب تو پڑھ لیتا ہے مگر اس کے اخلاق، گفتگو، گھریلو معاملات میں علم کا اثر نظر نہیں آتا.
استاد اور ناظم اس فاصلے کو کیسے ختم کریں کہ علم صرف ذہن میں نہیں بلکہ کردار میں بھی اترے؟ استاد کے کردار میں اترا ہوا ہو تو طالب علم کے بھی اندر اترے گا یہ، ورنہ بعض اوقات استاد کے اندر ہوتا بھی ہے تو طالب علم ایسا ہوتا نہیں ہے جو اس کو قبول کرے، لیکن جنرل یہ ہوتا ہے کہ خربوزوں کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو وہ محاورہ مشہور ہے یہ۔ تو یہ کہ استاد اگر با جماعت پابندی سے نماز پڑھتا ہوگا، سنتوں پر عمل کرتا ہوگا، الٹے ہاتھ سے لینا اور سیدھے ہاتھ سے دینا اور یہ سب جو چل رہا ہوتا ہے، مطلب یہ نہ ہو سنت کے مطابق ہو، سیدھے ہاتھ سے دینا، سیدھے ہاتھ سے لینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے پینا، یہ سب ہو رہا ہوتا ہوگا، تو یہ طالب علم یہ سیکھتا چلا جائے گا۔ اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں، سنت ہمارا لباس، سنت ہمارے بال، سنت ہماری داڑھی بھی بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو یہ سب اگر، اور پھر اخلاق اچھے ہوتے ہوں گے، رف ٹاکنگ نہیں کرتا ہوگا، سمجھے، اور یک در گیر و محکم گیر والا ہوگا، ایک ہی دروازہ، جیسے کہ دعوت اسلامی کا پکڑا تو دعوت اسلامی کو بس، تو اب دعوت اسلامی، سامنے دعوت اسلامی، پیچھے آگے پیچھے اوپر دائیں بائیں ہر جگہ دعوت اسلامی ہو۔ پھر یہ ادھر چلے گئے تو ادھر جا کے تھوڑا دمدماٹی کر کے آ گئے تو پھر ادھر آ کر سر جھکا کے بیٹھ گئے، یہ نہیں، ایک رنگ۔ اگر یہ انداز ہوگا تو شاگرد میں یہ اترے گا، ورنہ پھر جو ہو رہا ہے بعض اوقات جو دیکھا جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں استاد کا اہم کردار ہوتا ہے۔ استاد جو بولتا ہے شاگرد اس کو قبول کرتا ہے، یہ استادوں کو پتہ ہوتا ہے، استاد جو بولتا ہے شاگرد کو لیتا ہے۔ اب یہ کہ جو دے گا استاد، جیسا استاد جیسے نصیب، بعض طالب علم دین کا بہت کام کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کے اوپر جائیں گے نا تو استاد نے دین کے کام کیے ہوتے ہیں، کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ذہن دے رہا ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ پورے درجے، بعض کلاسیں اگرچہ کم، پوری کلاسیں 12 ماہ کے نکل جاتی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ استاد نہیں ہے ذہن سازی کی۔ ایسے استاد کو لاکھوں سلام نہ کروں میں، دل سے دعائیں نہ نکلے میری کہ میری دعوت اسلامی کا یہ خیر خواہ ہے۔ اب اگر ایسا استاد جو یوں ذہن دے، پہلے پڑھ لو بعد میں، جس طرح میں کر رہا ہوں تم بھی بعد میں کرنا، میں بھی جیب بھر رہا ہوں تم بھی بھرتے رہنا، یہ استاد سے دل میں دعا نکلے گی، بد دعا نکلے گی، جو بھی نکلے خدا بہتر جانے کیا نکلے، خوشی تو نہیں ہوگی نا، کیونکہ ہر ایک اپنی دکان میں جتنی بکری زیادہ ہو اتنا وہ خوش ہوگا۔ تو میری دکان دعوت اسلامی، دعوت اسلامی میں سنتیں اور نیکیاں ہیں، اس کے علاوہ ذاتی مفاد کی بات ہو تو بالکل آپ اس کو مسترد کر دیں، میں نے کہاں سے اپنے ذاتی کوئی بات کی آپ سے، تو اس لیے مہربانی کر کے دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہیں۔ یقین مانیں اتنے جامعات المدینہ ہمارے ہو جائیں گے کہ دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر انشاءاللہ خالی نہیں رہے گا۔ ابھی بہت ضرورت ہے ہمیں جامعات المدینہ بڑھانے کی، بہت ضرورت ہے۔ آپ سمجھتے کہ یہ کافی ہو گیا؟ نہیں، بھلے 700 سے زیادہ جامعات المدینہ ہے، 1500 سے زیادہ، لیکن یہ کافی تو نہیں ہے، دنیا تو بہت بڑی ہے، 15 لاکھ ہوں تب بھی کم ہے۔ گلی گلی جامعۃ المدینہ ہونا چاہیے، ہاں، کوئی بچہ بے نمازی نہ رہے، کوئی ہماری اسلامی بہن بے پردہ نہ رہے۔ ہمیں مسجدیں ایسی بھرنی ہے کہ ہمیں مسجد اور بناتے بھی ہیں الحمدللہ، تو اس کو آباد بھی کرنا ہے نا، آباد آپ لوگ کرو گے تو ہوگی نا، خالی چاہ لینے سے نہیں ہوگا، آگے بڑھنے سے اور اپنی قربانیاں دینے سے، فزیکلی اپنے آپ کو پیش کرنے سے یہ مساجد بھریں گی اور آباد ہوں گی۔ ہم بس سمجھو اور غور کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں نے مکتوبات امیر اہل سنت میں پڑھی، یقین مانے کہ آپ نے اتنا بہترین کام کیا ہے اور ایسی کہ یقین مانے ان کو لفظوں میں شاید بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ اس کی دوسری جلد کا اور اس کے بعد والی جلدوں کا بے حد انتظار رہے گا۔ امیر اہل سنت کے مکتوبات کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کا گوشہ ویسے تو واضح ہی ہے امیر اہل سنت کی ذات کا، لیکن ان تحریروں میں جو بالخصوص مکہ اور مدینہ کے مکتوبات ہیں، آپ نے جو منظر کشی کی ہے کمال کی ہے۔
मुझे पढ़ते हुए यकीन माने कि ऐसा महसूस हुआ कि मैं वहाँ पर हूँ और उस जितनी देर में वो तहरीरें पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जो लुत्फ़ है वो जो मज़ा है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इश्क व मोहब्बत के जो आपने उसमें जाम पिलाए हैं, आँखों को नम कर दिया। मैंने मुख्तलिफ जो है वो सफ़रनामे मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के हैं वो इकट्ठे किए हैं, तकरीबन 70 से 72 सफ़रनामे हैं और गाहे बगाहे मैं उनको पढ़ता रहता हूँ, कईयों को पढ़ा हुआ है मुकम्मल में। लेकिन जो इसमें मज़ा आया इसका एक अलग ही अंदाज़ है। इस पर तो बेहतरीन और भी जितने हों वो जमा होने चाहिए और अलग से ये एक तहरीर हो। अल्लाह तबारक व तआला बरकतें दे। ये तो मैंने सिर्फ मक्का मदीना के वो बयान किए, इसके बाद भी आपने जो और मकतूबात बयान फरमाए हैं वो भी अपनी मिसाल आप हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकतें अता फरमाए। ये माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत की किताब मकतूबात अमीर अहले सुन्नत, इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन हमें मुख्तलिफ़ उलमा के भी और हमारे ज़िम्मेदारान और आम इस्लामी भाई भी जो ये किताब पढ़ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अपने भले जज्बात का इजहार करते हैं। अमीर अहले सुन्नत से भी अच्छा माफ़ी, ये आम इस्लामी भाई का नहीं है, ये फैसलाबाद के एक मुदर्रिस है जो शायद आए हुए होंगे, मोहम्मद हुसैन मदनी, उनके तासुरात हैं। अब मुझे नाम नहीं मिला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये देखा है कि उलमा ने भी और ख़ास अभी जैसे आपने फरमाया कि इस तरह से मकतूबात अमीर अहले सुन्नत, ये अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मकतूब तहरीर फरमाए थे, तो हमारी एक मजलिस ने माशाअल्लाह अल करीम इसको जमा किया और इसकी पहली जिल्द जो है, पहला वॉल्यूम जो है वो शाया हो चुका है। तो कई इस्लामी भाइयों ने इसको लिया भी है और पढ़ा भी है। तो आज भी बड़ा अच्छा मौका है कि हम यहाँ मौजूद हैं। अमीर अहले सुन्नत इस मकतूब में यकीनन दुनिया और आखिरत की बेशुमार बरकतें हासिल करने के ज़राए मौजूद हैं। आप इस सिलसिले में हमारे मुदर्रिसीन को क्या रहनुमाई फरमाएंगे कि इससे किस तरह फ़वाइद हासिल की जा सकते हैं? आप ही फरमा दिए। मैं तो ये नाम आपने नहीं लिया तो मुझे रहा नहीं गया, तो बोल पड़ा मैं। ये जिसने आपको भेजा उसकी कमजोरी है, पूरा काम नहीं किया उसने। बहरहाल ये बरसों की कमाई है मेरी, बरसों की। इसमें दावत इस्लामी से पहले के भी शायद शामिल नहीं तहरीरें। समझो ये एक तारीखी असासा था जो इस्लामी भाइयों ने जमा किया, अल-मदीना इल्मिया ने इस पर काम किया और मकतबतुल मदीना ने इसको शाये किया। तो ये पढ़ने वालों के हमारे काफ़ी यानी कि इसके तासुरात चलते रहते हैं। कभी इस पर पहले तो थोड़ी कैंपेन चली थी, फिर अब ये कि आज फिर ये तरकीब बनी, तो हैं पढ़ने वालों की तादाद है, पढ़ने वालियों की भी तादाद है, उनके भी तासुरात तो हम चला नहीं सकते ना। तो चलाने हो तो चलाए तो जा सकते हैं बगैर नाम लिए, लेकिन अब ये बहरहाल इसको पढ़ना चाहिए। इसका हदिया बता दें, पेज बता दें कितने हैं। ₹1000 हदिया है। 1000 हदिया है। पेज कितने हैं? 425। माशाल्लाह 425 पेज हैं। चलो अब तस्वीर भी आ ही गई स्क्रीन पर, किसी ने दिखा दी। कुछ साहब भाई हैं जिन्होंने, अच्छा आप नहीं पकड़ के रखा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसको आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो कहाँ कहाँ बैठ कर ये मैंने मकतूब लिखे, इसमें मकतूब तैयार की। असल मकतूब जो है ना, ये इसको मकतूब के माने लिखा हुआ मकतूब, तो मकतूब लिखा है ये शायद जमता नहीं है, मकतूब तैयार किया है। तो ये बड़े मुक़द्दस मकामात पर और मस्जिद नबी शरीफ, तो मस्जिदुल हराम शरीफ में ख़ास ख़ास जगहों पे सब तो लिखा हुआ है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप पढ़ेंगे तो अल्लाह करेगा मक्के मदीने की तस्वुर में सैर भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर मुफ्त तकसीम कर दिया जाए तो पढ़ेंगे सब।
हाँ भाई, है आपके पास कोई मुफ्त तकसीम करने की तरकीब? 2-5 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, और क्या। बल्कि यहाँ तो ये होना चाहिए कि अक्सर मुसाफिर हैं तो कहते हैं घर वालों के लिए कोई तोहफा लेके जाना होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो जिस दिन आई थी ना उसी दिन 2 खरीदी थी, खरीद कर एक अपने घर पे खरीद कर लेकर गया था। तो अब इनके और एक तकसीम इस भी। तबके के थोड़ी हैं आप यार। नहीं, हम तो ये जहन तो होना चाहिए ना। इनकी आमदनियाँ कितनी बेचारों की। एक तबका इसी तरह का जमा था मेरे पास, चुटकुला कभी कभी बताता हूँ मैं। एहतिकाफ की तरकीब दिलाते हैं, रमज़ान शरीफ की एहतिकाफ की। उन दिनों रमज़ान शरीफ एहतिकाफ शायद 10 दिन का होता था, तो अब कोई तैयार ना हो तो मैंने कहा अगर ये क्या कोई इसके इजारे की तरकीब हो जाए तो कौन कौन करेगा। मैं सीरियस होकर कहा गया तो कुछ हाथ उठ गए क्या नहीं, इजारे पर एहतिकाफ। अब देखो नमाज पढ़ने का कब से इजारा शुरू करते हैं, पढ़ाने का तो इजारा मुताखिरीन ने जायज़ कर दिया, क्या पढ़ाओ तनख्वाह लो। अब पढ़ने का इजारा ये कब निकलता है? देखो अभी तक कोई निकला नहीं है, खैर उम्मीद भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि क्या खाली पैसों से ही करना हमने? अल्लाह के लिए कौन करेगा? इसलिए अगर पढ़ना हो ना तो खरीद कर आदमी, मेरा तो ये कभी कभी बोलता हूँ मैं, किताब कोई दे तो मैं पढ़ूं, ये जहन नहीं होना चाहिए। मैं खरीद कर पढ़ूं तो इसका सवाब ज़्यादा मिलेगा ना। और फिर ये जहन कि मुझे कोई दे तो पढ़ूं, ठीक है। दुनियावी तालीम जो लेते हैं तो क्या ये भी ये इंतज़ार करते हैं कि कोई मैथमेटिक्स की किताब दे दे, कोई अलजेब्रा की किताब दे दे तो पढ़ूंगा। सब जेबों में हाथ डालते हैं, बाप इनका खर्चा करता है इन पर। तो इसी तरह लोग पढ़ते होते हैं। तो दीन की किताब भी तो खरीदी जाए ना। तो हिम्मत करें और इंशाअल्लाह इसका सवाब मिलेगा। इसको खरीदें, हाँ, और पढ़ें भी इसको। आप पढ़ेंगे, मज़ा आना है, पैसे वापस। यदि मकतबतुल मदीना ने एक ऑफर भी जारी की हुई अच्छा, मकतबतुल मदीना पे जाना नहीं है कि वो पैसे वापस का ऐलान हुआ था। मैं ये मुहावरतन मेरा मुहावरा है, पैसे वापस। ये तो बेचने वाले बोलते हैं, इसका मतलब ये कि वाकई पैसे नहीं, यानी वो इसकी तारीफ में मुबालगा है किसी चीज़ की। सीधी मकतबतुल मदीना ने एक ऑफ़र भी जारी की है कि तरबियती नशिश जो नाज़मीन व असातिज़ा किराम का जारी है 6 जून था 10 जून 2026। इस नशिस्त के शुरका के लिए मकतबतुल मदीना जो फैज़ान मदीना कराची में जो ब्रांच है उस पर 20% खुसूसी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है हर किताब पर। जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलो अब तो आगे बढ़ें इंशाअल्लाह। तो ये मकतूबात की किताब 800 रुपये की हो जाएगी गालिबन, है ना? जी इंशाअल्लाह लेंगे इंशाअल्लाह। ये यकीन माने खुदा की कसम, इसलिए नहीं कि हमको पैसे आए, इसके लिए नहीं कह रहा। मुझे तो 1 टका भी कभी आज तक मैंने ना अपनी किताबों से ना अपनी कैसेटों से 1 टका भी इसका डिस्काउंट, क्या बोलते हैं इसका, कमीशन कभी भी नहीं लिया। अपनी औलाद को भी वसीयत कर दी कि सब फी सबीलिल्लाह है, पैसे नहीं लेने। तो ये हिर्स जो है, ये बात बुजुर्गों के उस कौल की समझो अक्कास है कि हमारा बस चलता तो हम तुमको इल्म घोल के पिला देते। बस उस बुजुर्गों को जो हिर्स थी ना, वो उसकी अक्कासी है। वरना अपनी बला से कोई पढ़े ना पढ़े, अपना ना मेरा पैसा इसमें लगा है, ना मेरा सरमाया लगा है, ना मुझे से कोई सरमाया मिल रहा है। तो ख्वाहिश है कि किसी तरह भी दीनी मालूमात हमारी बढ़ती चली जाए और दावत इस्लामी जो है ये खुसूसन आप लोगों में या दीगर इस्लामी भाइयों में, इस्लामी बहनों में उतरती चली जाए। तो जब एक तरीक़ेकार जितना मजबूत होता चला जाएगा, आपके दीनी काम में उतनी ही पुख्तगी और तरक्की होगी। वरना हर एक अपने अपने अंदाज से करेगा ना कि यहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी तो बहुत ज़रूरत है, तो फिर ये जो होना होगा होगा, और हो भी रहा है। जो इस तरह तरीक़ेकार से हटकर चलते हैं ना, अब यार मतलब ये कि आपको ज़रूरत अभी समझ में आई, हमने सफ़ेद बाल कर लिए यार, अभी तक घास काटी थी, जो आपको तरीक़ेकार दे रहे हैं। हमको कोई तजर्बा नहीं, कुछ पता ही नहीं है। अब आपको पता चल गया कि बहुत ज़रूरत इसकी है। हर ज़रूरत जो आप लोग दावे करते हैं ना, हम ना मतलब इसको लाइव
उस पर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, उस ज़रूरत का ना मतलब खुसूसी में भी नहीं कर सकते, डर लगता है कि हर बात हर जगह की नहीं जाती। वरना जितनी भी ज़रूरतें लोग बयान करते हैं ना कि अब यहाँ ये इसकी ज़रूरत, वहाँ उसकी ज़रूरत, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके जवाबात होते हैं। लेकिन मजबूरियाँ हैं, हर जगह हर एक को जवाब दिया नहीं जा सकता। अब तो सोशल मीडिया ने मज़ीद मसलियत की लगाम डाल दी कि क्या का क्या हो जाएगा। बल्कि एक दरख्वास्त ये भी है कि बाज़ बातें हम ऐसी करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाती है बातें, ख़ासकर खुसूसी मदनी मुज़ाकरा ऑफेयर में, तो वो भी अपने पेज पर या सोशल मीडिया पे देना नहीं होता, हर बात देनी नहीं होती, सोच समझ कर देनी होती है। कि आप अच्छी समझ कर देंगे कि आज तो हमने ये सीखा, वो सीखा, और करके वो कुछ ऐसा सिखा दिया लोगों को कि फिर वो पीछे लग गए सोशल मीडिया के ज़रिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। दादा जान, मैंने इशा की नमाज भी पढ़ ली है और खाना भी खा लिया था ताकि जल्दी सो सकूं, लेकिन सोऊंगा तब जब आप मुझे कहानी सुनाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। दादा जान, आज कोई हैरान कर देने वाली कहानी सुनाएं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची और हैरान कुन कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक आदमी जानवरों की बोलियां समझने लगा था। सच में? बहुत जमाने पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जानवरों की बोलियां समझ सकूं। बराए करम मुझे जानवरों की बातें सिखा दीजिए। सच में दादा जान? वो ऐसा क्यों चाहता था? जानवरों की बात सुनकर वो क्या करता? ये तो कहानी में आपको पता चल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन वो आदमी बार बार कहने लगा, आप अल्लाह के नबी हैं, मेरी ख्वाहिश पूरी कीजिए। अल्लाह पाक की अता से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जानवरों की जुबानें सिखा दी। वो शख्स बहुत खुश हुआ कि उसे जानवरों की बोलियां समझ आने लगी थीं। दादा जान, फिर क्या हुआ? इस शख्स के पास कुत्ता और एक मुर्गा था। अब वो उनकी बातें समझ सकता था। अरे वाह, कितना मजा आएगा। वो कुत्ते बिल्ली की सब बातें समझ जाएगा। दादा जान, आप मुझे भी जानवरों की बोलियां सिखा सकते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी थे। अल्लाह पाक ने उन्हें ताकत दी थी, जो चाहे जिसे चाहे अता कर सकते हैं। ऐ काश हम भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते, हमें भी बहुत सारी बरकतें मिलती। बेशक हुआ कुछ इस तरह कि एक दिन घर में दस्तरखान पर बचे हुए खाने को जानवरों के आगे डाल दिया। एक बोटी मुर्गे ने खा ली, कुत्ता मुंह देखता रह गया। अरे यार, एक बोटी तो मेरे लिए छोड़ देते, दाने सारे तुम खा लेते। फिक्र ना करो दोस्त, कल इस शख्स का बैल मर जाएगा। भू? हाँ? सच? जब उस शख्स ने ये बात सुनी तो औने पौने में बैल बेच दिया ताकि मरे तो गाहक के घर में मरे। बैल वाकई दूसरे रोज खरीदार के घर जाकर मर गया। चलो अच्छा हुआ, मेरे सर से भला टल गई। ये है जानवरों की बोलियां जानने का फायदा। मुर्गे, तुमने झूठ बोला, मैंने ना बैल खाया ना बोटी। ये तो उस शख्स ने गलती की, अपनी बला दूसरे के घर में डाल दिया। कल उसका घोड़ा मरने वाला है, जी भर के उसका गोश्त खा लेना। उस शख्स ने ये बात सुनी तो समझ गया। उसी रोज उसने घोड़ा बेच डाला। घोड़ा भी दूसरे रोज खरीदने वाले घर मर गया। ये बड़ा खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ कि मेरे सर से बला टल गई। तीसरे दिन कुत्ते ने दोबारा मुर्ग से शिकायत की। तुम तो बड़ा धोखा देते हो, झूठ बोलते हो। घोड़ा भी तो तुम्हारे कहने के मुताबिक नहीं मरा और मुझे गोश्त भी खाने को नहीं मिला। मैंने झूठ नहीं कहा, इसके बैल पर बला आने वाली थी, लेकिन उस शख्स ने बैल बेच दिया। फिर वो बला उसके घोड़े पर आई, लेकिन उसने घोड़ा भी बेच दिया। यूं बला घोड़े से भी हट गई। अब वो बला किसी जानवर पर नहीं बल्कि खुद उस शख्स के सर पर है, और कल ये शख्स मर जाएगा। अगर ये बैल ना बेचता और घोड़ा ना बेचता तो शायद बच जाता। अब जब ये मरेगा तो दूर दूर से मेहमान आएंगे, खूब खाना पकेगा और तुम्हें बड़ी बड़ी हड्डियां और मजेदार बोटियां खाने को मिलेंगी। उस शख्स ने जब ये सुना वो घबरा गया
कि वाकई मुर्गे की बातें सच साबित हुई हैं। फिर क्या हुआ? फिर वो शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में रोता पीटता हाजिर हुआ और सारी दास्तान सुनाई। अर्ज किया, हजूर बस किसी तरह मुझे बचा लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे घर पर एक मौत होने वाली थी, तो पहले ये मौत बेल पर आनी थी, लेकिन तुमने बेल को खिसका दिया। मौत घोड़े पर आने वाली थी, तुमने उसको भी बेच दिया। तुम बाकी रह गए हो और तुम्हारा बचना नामुमकिन है। जो बात तुम्हें अब मालूम हुई है वो मुझे पहले ही से मालूम थी, मगर तुम बहुत जिद कर रहे थे। मैं तुम्हें बाज रहने की तलकीन करता रहा, मगर तुम ना माने। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आखिरकार वाकई उस शख्स का इंतकाल हो गया। अब मैं समझा प्यारे बच्चों, जब भी कोई परेशानी आए तो हमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने का ज़हन बनाना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें छोटी परेशानी के जरिए बड़ी परेशानी से हमें बचा लिया हो। दादा जान, ये जो बिल्ली हमारे घर आ जाती है, ये जो चिड़िया और कौवे घर की छत पर आकर बैठ जाते हैं, क्या ये सब भी मुसीबत टालने का जरिया बन सकते हैं? क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत हमजा रजा के इस सवाल के बारे में? और उसके अलावा ऐसा क्या अमल हो कि जिसके जरिए बलाएं मुसीबतें टल जाती हैं, वो भी इरशाद फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, बड़ा जबरदस्त। ये वाक़या जो है मूसा अलैहिस्सलाम वाले, ये ग़ालिबन मसनवी शरीफ में हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ग़ालिबन। और अब ये कि चिड़ियाँ बिल्ली दिखाई ना, तो ये इनसे कोई बरकतें आती हैं, मुसीबतें टल जाती हैं? हाँ, मुझे पता नहीं है। सफ़ेद मुर्गे का तो जिक्र है ना? सफ़ेद मुर्गे का हदीस शरीफ में जिक्र है। सफ़ेद मुर्गा रखने से जिन्नात से हिफाजत रहती है। सफ़ेद मुर्गा घर में अगर रखें तो जिस घर में हो वहाँ जिन्नात नहीं आते, सताने वाले जिन्नात जो। क्या ये अच्छा गुमान किया जा सकता है कि जैसे घरों में उमूमन पानी पिलाया जाता, परिंदों को दाना दिया जाता है, तो इनके साथ ये भलाई करना, खैर करना, इससे कोई अच्छी बात ली जा सकती है कि इनके साथ भलाई खैर होने के हर तर जिगर में अजर है, तो इस तरह हमें कोई फ़वाइद हासिल होंगे और कुछ इसकी वजह से हम पे कोई खैर का नुज़ुल होगा। अब वो हर नेकी जो है ये बरकत का ज़रिया, फ़वाइद का ज़रिया, हर नेकी। तो अगर यूँ मतलब अगर लें तो फिर चिड़ियों को जो दाना डालते हैं, कबूतरों को दाने डालते हैं, सारे उस सवाब का, उसमें ये सवाब का काम है, नेकी है। अगर दुरुस्त तरीके पर वो काम करते हैं तो इसकी भी बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। ओके, हर तर जिगर वाली में अजर है, जिसमें जान है उसके साथ एहसान करेंगे तो अजर मिलेगा। वो ना प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाले के लिए जन्नत की बिशारत थी। वो प्यासा था। ये चिड़िया कबूतर को जो खिलाते हैं, ये यानी यूँ जनरली भूखे प्यासे है, तो ये नहीं कहेंगे इनको कि ये भूख प्यासे मर रहे हैं, ये पोजीशन नहीं होती। तो लेकिन बहरहाल कार्य सवाब ज़रूर है। कव्वे के बारे में अलबत्ता ये है कि ये जिस घर पे होता है तो ये मुसलसल लानतें करता रहता है। ये पिछले दिनों मैंने इसका हवाले के साथ बयान किया था, तफसीर का भूल गया मैं कौन सी तफसीर, तफसीर मदारिक। अच्छा, तो तफसीर मदारिक के हवाले से तफसीली बात हुई थी कव्वे के बारे में, इस टॉपिक पर, कि वो जब तक घर पे बैठा रहता है वो लानतें करता रहता है। तो ये जो वाक़या हुआ, जो भी अभी हमने AI के ज़रिए देखा, इसमें क्या ये बात हम समझ सकते हैं कि बड़ों की बात मानना और बड़ों की बात नसीहत जो वो समझाएं, उसके ताल्लुक़ से बातों का वैसा लोग होते हैं कि वो, हालांकि वो ऐसी शख्सियत होती है कि जिनकी बात मानी जाए, समझी जाए, इनके तजर्बे होते हैं, इनका इल्म होता है, मालूमात होती है, मगर आदमी अपनी ख्वाहिश के ज़रिए नहीं, आप बस कर दो। जैसे किसी ने किसी को कहा यार आप दुआ करें मेरा काम हो जाए, तो
تو اس نے کہا کہ اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر کر دے. بولا یار آپ یہ کہتے کہ اللہ پاک میرے حق میں بہتر کر دے وہی ہو, تو یہ جو ہو رہا ہے اس کے لیے بولو نا اللہ یہ کام میرے حق میں بہتر کر دے. تو اس طرح بعضوں کا ایسا ہوتا ہے, یعنی بعض وہ مریض جو ڈاکٹر سے اپنے مطلب کی دوائی مانگتے ہیں, اب یہ والی دوائی دو, ڈاکٹر بولتا ہے یہ دوائی کھا لو, نہیں میرے کو وہ دوائی چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں. تو بڑوں اور بزرگوں کی اس طرح کی باتیں جو ان کو کہی جاتی ہیں, مشورہ دیا جاتا ہے کسی کرنے نہ کرنے پر, اس کو ماننے نہ ماننے کے تعلق سے کیا اس واقعے سے ہمیں کوئی سبق ملتا ہے؟ جی, اصرار, اب اس کی صورتیں بنتی ہیں, اس میں بعض اوقات ضد جو ہے نا وہ, لیکن لوگوں کی جو لاجک ذہنی پوزیشن جو نا یہ غریب و عجیب ہے. ایک بار میں نے کوئی واقعہ بیان کیا ہوگا, حضرت, میں بھول جاتا ہوں یار, صحابی کا نام یاد نہیں ہے, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, یا کہ آپ کا یہ تھا کہ کسی سے ناراض ہوتے تو اس کو مطلب فرماتے ہیں کہ اللہ تجھے دنیاوی دولت. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کہ اس طرح کہ تجھے اللہ پاک دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے, اس طرح وہ فرماتے ہیں. تو اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس پہ یہ لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو دنیا کی دولت ملے گی تو یہ تکبر آئے گا اور یہ اس کوششوں میں پڑے گا اور یاد خدا سے غافل ہوگا. تو یہ دعا نہیں ہے, بد دعا ان مانو کر وہ. تو مجھے ایک, آپ کو حیرت ہوگی, ایک شخص نے مجھے کہا کہ وہ مجھے یہ بد دعا دے دو نا آپ, مجھے کہہ یعنی ایسے پاگل لوگ بھی اس دنیا میں بستے ہیں, یعنی بیڑا غرق, کل بھلے ہو, آج مجھے دولت مل جائے, کل دیکھی جائے گی, نعوذ باللہ. تو یہ سوچیں لوگوں کی عجیب و غریب ہے. اگر جیسے اس کا یہ ذہن ہوگا نا کہ یہ دعا کرے گا تو ہو جائے گا, تو یہ تو بہت بڑا رسک لے رہا تھا اپنے لیے. نہ میں نے وہ دعا کی اس کے لیے, نہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو سکتا ہوں, کبھی بھی کوئی نہیں ہو سکتا. صحابی تو صحابی ہوتا ہے, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو یوں مطلب یہ کہ اچھا بعض اوقات اصرار کرنا یہ کام بنا بھی دیتا ہے. اب اس کی کوئی, میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اس مثال میرے ذہن میں آ نہیں رہی. بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے اور اس کی مطلب یعنی کہ مانگنے والے کی وہ طلب دیکھی جاتی ہے. جس سے کہ تو مجھے یاد پڑتا سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عربی میں خلافت نامہ تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا, یاد پڑتا ہے. جس نے پڑھا اس کو شاید پہنچ جائیں گے یہ, کہ جس کو یہ خلافت نامہ جیسے ملا تو اس کے بارے میں کہ یہ اس نے اصرار کیا مجھ سے کہ مجھے خلافت دو, مجھے خلافت دو. تو جب میں نے ان کی طلب دیکھی تو ان کو خلافت دی, پڑھائی عربی میں جو خلافت نامہ. اصل میں یہ ایک تو وہ جو مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ جیسے احادیث طیبہ کی بھی بسا اوقات اجازت طلب کرتے ہیں تو کہتے ہیں فَأَصَرَّ عَلَيَّ, یعنی میں اس قابل نہیں تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھ پر اس بات کا اصرار کیا. تو جب میں نے دیکھا ان کے اندر اس چیز کا طلب دیکھی تو پھر میں نے ان کو اس بات کی اجازت دی. تو اس معنی میں عام طور پہ تو استعمال ہوتا ہے. دوسرا وہ مفہوم آپ بیان فرما رہے ہیں وہ بھی ایک معنی میں ہو سکتا ہے کہ کسی مقام پر ہو. یہ مطلب یہی ہوں گے الفاظ اسی طرح کے وہ عربی خلافت نامے میں. تو یوں بھی نہیں, اصرار کی بھی گنجائش تو ہے کہ اس کی طلب دیکھی جاتی ہے, وہ منع کر رہے ہیں. تو اس میں بندہ یہ کہ اگر کوئی منع کریں تو پھر بدظن ہو کر مطلب اپنا مطالبہ واپس نہ لے, بلکہ اصرار جاری رکھے, دعا کرتا رہے کہ میرا کام ہو جائے. تو بعض اوقات یہ کہ کام نہ بھی ہوتا ہو تو ہو جاتا ہے. جیسے کہ وہ ایک ان کا یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شاید واقعہ ہے. یہ میں نے پڑھا تھا کہ کوئی خاتون حاضر ہوئی ہوں گی, باپردہ خاتون, اولاد ان
के पास नहीं थी, तो इन्होंने गालिबन फरमाया कि तुम्हारी किस्मत में नहीं है, जाओ। तो उस खातून ने या जो भी साहब तशरीफ हाजिर हुए थे, उन्होंने कहा कि किस्मत में होता तो मिल ही जाता, किस्मत में होता तो मिल जाता, फिर आपके पास आने का मकसद क्या, आप दिलवा दीजिए। तो फिर यह कि उन्होंने वो दुआ मांगी या जो भी किया तो उनको औलाद होगी। तो किस्मत की क्योंकि अक़साम है ना, तो इसमें तकदीर मुअल्लक भी है। तो खैर ये तफसील है इसकी। तो अपने है ना कि दुआ तकदीर को बदल देती है। अद्दुआओ यरुद्दुल क़दा, अद्दुआओ यरुद्दुल क़दा, है ना, अद्दुआओ यरुद्दुल क़दा, कि दुआ तकदीर को बदल देती है। तो मेरे तकदीर में होता तो मुझे मिल ही जाता, आपके बाद हाजिर होंगे, आप दिलवा दो, तो दुआ कर दो, ठीक है ना। तो यूं इसरार कभी काम भी दिखा देता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। उलमा इकराम फरमाते हैं ईमान की हिफाजत का एक ज़रिया किसी मुर्शिद कामिल से मुरीद होना है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, याद करो जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तफसीर नूरुल इरफान में मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, इससे मालूम हुआ दुनिया में किसी सालिह को यानी नेक को अपना इमाम बना लेना चाहिए, शरीयत में तकलीद करके और तरीक़त में बैअत करके, ताकि हश्र अच्छों के साथ हो। इस आयत में तकलीद, बैअत और मुरीदी सबका सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में हम हाजिर हैं और मदनी चैनल के नाज़रीन और नाज़िरात भी देख रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरों में तौबा भी करवाते हैं और गौसे पाक का मुरीद भी बनाते हैं। और हमारे गौसे पाक 11वीं वाले पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क़यामत तक मेरा कोई मुरीद बग़ैर तौबा के नहीं मरेगा। अल्लाह करीम हमें सच्ची तौबा की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि हमें तौबा भी करवाएँ और सिलसिला क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में भी दाखिल फरमा लें। की शम्अ पुरज़िया, फ़िक्रे इमाम अहमद रज़ा की शम्अ पुरज़िया, है बिल यकीन फ़ैज़े रज़ा मदनी मुज़ाकरा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाब गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़ावी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप मदनी चैनल के दीगर प्रोग्राम देखिए। पहले वो कलमा पढ़ा दूँ मैं। जी।
फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल देखते रहिए, नमाज की पाबंदी करते रहिए। फैजाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। मदनी चैनल नाज़रीन